अस्सलाम वालेकुम वलिज़ना, कैसे हैं आप? Walaikum salam. I'm good. How are you, Mer? I'm good, I'm good. Thank you so much for joining the session. As you know कि the main reason of having these session is to get as much knowledge as we can from industry professional के lives know किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, how they are dealing with things and उनकी specific field के अंदर क्या-क्या चीज़ें बहुत important हैं. So before we move towards our session, if you can introduce yourself, क्या कर रही हैं आजकल, how's everything going? Where are you working right now? So then we'll start the conversation. Sure. So, Assalamu alaikum, everyone. So, my name is Alizna Farhan, and I am born and brought up here in Karachi, Pakistan. Very rough and tough city, one must say. So, currently, I'm working as a design researcher at Dollins in their CX department, which stands for Customer Experience Department. Since I think 2 years, जब से मैं graduate हुई, like I graduated back in 2023, and I'm working there since then. So that's about professional life. And from academic life, I did my bachelor's from Habib University with a minor in religious studies. So that's a little bit about me. Perfect, perfect. Yeah, Yeah. perfect. So, starting off our conversation, what I really wanted to see is, you have a start from Aga Khan, then do some small internship. Now you're doing good in dollars. So, how was the overall track plan before we start discussing about कि हबीब कैसा था, हबीब यूनिवर्सिटी कैसी थी, and I'm pretty much sure जब आप ग्रेजुएट हुई थी तब उसके बाद शायद कोरोना के बाद का पहला बैच होगा ये, ठीक है? एंड पीपल आर ट्राइंग टू फिगरिंग आउट कि यार ईदर वी आर गोइंग डिजिटल और ईदर वी आर गोइंग कन्वेंशनल, क्या चीज़ें किस तरीके से होंगी, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे। सो फर्स्ट आप मुझे बताओ कि हाउज़ डॉलिन्स लाइक आप किस तरीके से पहुँचे? इज़ इट प्लान्ड? क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली अगर आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर हो, आप किसी भी डिज़ाइन रिलेटेड फ़ील्ड में हो, कम्युनिकेशन डिज़ाइनर हो, ग्राफ़िक डिज़ाइनर हो, मोशन डिज़ाइनर हो, ज़्यादातर लोग जो है वो या तो एजेंसी से स्टार्ट करते हैं, या तो वो कोशिश करते हैं कि किसी ऐसी एमएनसी में जाएँ जो कि प्रोडक्ट बेस्ड हो, सर्विस बेस्ड हो। आई एम प्रीटी मच श्योर किसी किसी को भी आप बताते होंगे कि आप डॉलर्स में काम कर रही हैं, तो वो एक आध मर्तबा ज़रूर ये सोचता होगा कि आप शायद या तो मैन्युफैक्चरिंग में हैं या तो आप कोई ऐसा काम करती हैं। सो हाउ इज़ द ओवरऑल लाइफ आफ्टर योर यूनिवर्सिटी? Where do you started? How this Dolland happened? How's everything? So where did I started? When I think I was in metric or in my inter, I always had this passion for photography, and still today I do that. मगर बहुत कम हो गया because of the work and other community commitments that I have. So since intermediate, I had this plan कि मुझे nursing तो नहीं करनी because my two elder sisters are doing nursing. They have mashallah progressed very well in their careers. मास्टर्स कर लिया, पीएचडी का सोच रहे हैं, मगर आई ऑलवेज़ न्यू कि मुझे नर्सिंग में तो नहीं जाना, इवन दो माय इंटर वाज़ इन प्री मेडिकल। सो मुझे पता था कि नर्सिंग वाली तो फ़ील्ड है नहीं और वी आर 4 सिस्टर्स, सो आई वाज़ द थर्ड वन हू चोज़ अ वेरी डिफरेंट पाथ इन माय फैमिली, व्हिच वाज़ गोइंग कंप्लीटली इंटू कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन, फील्ड पर निकल जाना, लियारी चले जाना अकेले और वहाँ पर एथनिसिटीज़ से इंटरैक्ट करना, सो आई काइंड ऑफ एन्जॉयड डूइंग दैट। But within Habib, I feel like मेरा interest for UX, specifically user experience research, काफ़ी बड़ा because of one of my professors. और वहाँ से फिर ये पूरी I would say ये जो पूरा lineup है कि interest आना and then working at Dollins was very unplanned because my thesis was very hectic, very hectic. I had a multimedia installation जो पूरा physical था at Habib. So I had to plan everything. And my plan was कि मैं मई में graduate होंगी आराम से I will take 2 to 3 months का break and then I will apply for positions. और मेरा था ही कि I want to either go for CX or I want to go for UX वाली side. CX relatively is very new here in Pakistan. People really don't understand its function, what does they do. वो बहुत ज़्यादा I would say customer experience को बहुत ज़्यादा customer service से link कर लेते हैं. But still, there are places like UBL which is actually serving what CX does. So, Dollins, to be very honest, was unplanned because I got this opportunity through Habib Career Services. I applied there in, I think, in March 2023 or Jan 2023. It just stood out to me. Unki jo JD thi, it was really different from the other UX
और यूआई के मैं देखती थी चीज़ें। सो आई एप्लाइड देयर, आई गॉट इनटू देयर, और टू बी वेरी ऑनेस्ट उस वक़्त मैंने कहीं और अप्लाई नहीं किया था। हुँ। So when I got the offer, I had this in mind कि अभी लग जाती हूँ, maybe I will switch once I get a more, I would say a more suitable option for me. मगर I thought because CX is a newly inducted function here in Darlin since 2023. So my team only is like only three people, my boss, myself, and one analyst we have. So we had this, I would say we had this open space to experience. ऑफ कोर्स देयर वर बॉटलनेक्स जिसकी वजह से वो चीज़ें रुक जाती हैं, मगर इट्स नॉट जस्ट पर्टेनिंग टू डॉलेंस इटसेल्फ, इट्स पर्टेनिंग टू द एंटायर इंडस्ट्री। आप कहीं भी कोई नई चीज़ लाओ, उसको एब्ज़ॉर्ब होने में, उसको समझने में टाइम लगता है। सो व्हाई आई चूज़ स्टे हियर वाज़ बिकॉज़ फर्स्ट आई न्यू कि आई हैव द स्पेस एंड आई हैव द सपोर्ट फ्रॉम लीडरशिप इन सम फॉर्म कि मैं कोई आइडिया लेके जाऊँगी तो इट विल बी काइंड ऑफ रिस्पेक्टेड, और वो मुझे दिखा भी है। तो ये एक था कि व्हाई हाउ आई लैंडेड टू डॉलिंस और व्हाई आई एम स्टिल देयर। सो ये एक पर्टिकुलर रीज़न था जिस वजह से आई चोज़ दिस पाथ। ठीक है। मुझे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिएगा। आई एम प्रीटी मच श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो हैविंग ट्रबल एट दैट पॉइंट कि सीएक्स हाउ यूआई यूएक्स एंड हाउ सीएक्स इज़ मतलब हाउ यूएक्स एंड सीएक्स इज़ डिफरेंट। अ, थोड़ा-सा मुझे इसकी जेडी कोर जेडी बताइएगा कि व्हाट आर द राइट फिगर्स बिकॉज़ आई एम प्रीटी मच श्योर कि इफ डॉलन जैसी कंपनी हुँ, जिसको कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट्स कम टू देयर फिजिकल हुँ, प्रोडक्ट और वेदर इट कम टू देयर सर्विसेज या कोई भी चीज़, आई एम प्रीटी मच श्योर कि उसके अंदर सर्विस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, उसके अंदर कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता येस। है। हाउ कस्टमर एक्सपीरियंस इज डिफरेंट फ्रॉम यूजर एक्सपीरियंस? Okay, so with the amount of experience I have and how much I have explored, I feel like I personally see after practicing this for 2 years, I feel like UX is kind of a subset of CX. We can say this because when you talk about UX, you are pertaining to maybe a singular website or a singular application. I understand कि वो end to end होता है पूरा, but when you talk about CX, it kind of just don't focus on an interaction with an app or a website. वो एक पूरे प्रोडक्ट के साथ या पूरी एक सर्विस के साथ आपको सिर्फ नहीं रखता, मगर उसका एक ब्रॉडर रिलेशनशिप कस्टमर के साथ क्या है, बिजनेस वैल्यूज के साथ क्या है, वो हर टच पॉइंट पे दिखता है। इफ आई टॉक अबाउट डॉलिन, सो वी डोंट जस्ट सी कि हमारा कस्टमर रिटेल चैनल पे जाएगा तो उसका क्या एक्सपीरियंस होगा, वी ट्राई टू गेज कि वो हमारे वेबसाइट पे जाएगा तो उसको क्या एक्सपीरियंस मिला, इज इट आइडेंटिकल टू द एक्सपीरियंस दैट ही विल गेट ऑन द ऑफलाइन चैनल और नॉट, इज इट द एक्सपीरियंस ही और शी विल गेट जब वो यूज़र मैनुअल पढ़ रहा है। सो वो सारे टच पॉइंट को देखना, वो सारे इंटरेक्शन को आई वुड से ईजी और एफिशिएंट बनाना फॉर द यूज़र और द पोटेंशियल कस्टमर, it's what CX is. So I personally see UX as a subset of CX, not something which is different or not something which requires two different positions. A person who is UX, I think, might be able to do perform the duties of CX, but CX requires more, I would say, हर टच पॉइंट को जाके देखना, not just strategically, but आपको यहाँ पे थोड़ा ऑपरेशनल भी होना पड़ता है, which I have personally encountered. ठीक हो गया। द थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस राइट नाउ इज़ कि यार आफ्टर 2019 द कोविड थिंग, आफ्टर 2020 या 2021 में जब कंपनीज़ वापस वर्क फ्रॉम होम से हट के वर्क फ्रॉम ऑफिस पर आई, ठीक है? वी हैव सीन अ वेरी बिग बूम ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूसिंग डिजिटल सर्विसेज़, एजेंसीज़ बनी बहुत सारी। हमारे हमें पता चला कि भाई ठीक है, हम काम जो है वो अ, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है? Yes. और इसके अंदर जितनी ऑनलाइन प्रेज़ेंस बढ़ती है, उतना ही आपको उसकी प्रोडक्ट की सेंस, उसका यूज़र इंटरफ़ेस, उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो हाउ डू यू सी व्हेन यू ग्रेजुएट एंड स्टार्ट योर करियर? क्या लगता है कि यार ग्रेजुएट होने के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को या जो ग्रेजुएट होने वाले होते हैं, देखते हैं कि वो बाहर निकलेंगे, बिग 3 कंपनीज़ उनका वेट कर रही होंगी, वो जैसे ही बाहर आएँगे तो उनको नौकरियाँ मिल जाएँगी एंड एवरीथिंग इज़ सूटेबल। Yes. व्हाट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट यू हैव सीन? क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दोगे? क्या
आप चलो ठीक है, यू बीइंग प्लेवरेज, आपके पास इतना इतना फ़ायदा था या आपको इतना इतना किस्मत ने आपका साथ दिया कि आपके पास जो अपनी स्टार्टिंग करियर में एक बड़ी इंडस्ट्री का नाम लगा हुआ है आपके साथ, कि आपने डोमिनोज़ में काम करा है। एंड आई एम नॉट श्योर कि अब चाहें तो आप सिर्फ़ रेफ्रिजरेटर या इलेक्ट्रॉनिक की साइड पे रहें, बट नेम डू मैटर, बट यस। नॉट एवरीवन इज़ लकी इनफ, ठीक है? क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दोगे? क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि जब थीसिस होता है ना, तो मैं बच्चों को बहुत एक्साइटेड देखता हूँ। मतलब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि यार वो बहुत खुशी-खुशी थीसिस कर रहे होते हैं। ऑल्दो कि वो थीसिस आगे जाके वो उसको सेल करें या ना करें। क्योंकि व्हाट आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट मेक एफर्ट इन देयर थीसिस, बट दे डोंट हुँ, सेल दोज़ थीसिस इन अ वे कि उनको किस तरीके से जॉब मिलेगी। व्हाट आर द की मिस्टेक्स दैट यू see when you graduated, maybe in your friends, maybe in your family, कि यार ये मसले लोगों के अंदर होते हैं जिसकी वजह से उनको जॉब ढूँढने में या मिलने में मसला होता है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू के पाकिस्तान, स्पेसिफिकली अगर कराची की बात करूँ, हर पत्थर के नीचे डिज़ाइनर है, हर डिज़ाइनर यूआई है और हर यूआई डिज़ाइनर यूएक्स डिज़ाइनर है। वी आर स्टिल इन अ फेज़ जहाँ पे हमें शायद बीइंग एज़ अ डिज़ाइनर, बीइंग एज़ अ क्रिएटिव जाके समझाना पड़ता है कि व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूआई यूएक्स, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटी यस, ऑफ अ मोशन डिज़ाइनर, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ ग्राफिक डिज़ाइनर। यस। सो विद रिगार्ड टू योर एक्सपीरियंस ऑफ अ हबीब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, कितना अच्छा था या कितना बुरा एक्सपीरियंस था जब ग्रेजुएट हुए थे? I think if I start with Habib only, so Habib जिस तरीके से because as you mentioned कि हमारे I think 1.5 year या 2 साल हमारा ऑनलाइन था. So we didn't have that room to connect in person with our professors or with the student body. खैर वो तो बिल्कुल अलग एक tangent है. But if I see how Habib prepared me or its a student, I would say एक तो पहली बार I feel like I have seen people not only in Habib, in every institution जिनसे मेरा interaction होता है वर्क प्लेस में या इन कम्युनिटी, पीपल टेंड के बस यूनिवर्सिटी निकाल लो फिर जॉब लाइफ में तो जॉब तो मिल जाएगी आपको। बट आई थिंक वी नीड और स्टूडेंट्स नीड टू स्टार्ट टेकिंग देयर यूनिवर्सिटीज वेरी सीरियसली। इट्स नॉट जस्ट अ डिग्री, इट्स मोर देन दैट। जब आप उसको सिर्फ एज अ डिग्री देखते हैं ना, देन यू आर नॉट allowing yourself to learn out of your major. So what Habib actually does with us or with me was it actually tells or it actually guided us how to brand ourselves through the courses only. It's not something कि हमें कुछ out of the nowhere आके कोई सेशन मिल रहा है या वो मिल रहा है, मगर थ्रू कोर्सेज जैसे इफ़ यू हैव सीन द हबीब का करिकुलम, इट हैज़ अ लिबरल कोर irrespective of your major. You have to take those 10 courses, and those are very rigorous 10 courses which actually guides you how to communicate your ideas, how to present yourself, how to actually brand yourself. आई थिंक दिस स्ट्रैटेजी हबीब ने अपने ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करी है। बिफोर क्योंकि हबीब को मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं हुआ जितना बाकी Yes. यूनिवर्सिटीज़ को अगर मैं बात करूँ। बिफोर हबीब वी हैव बिग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नाम आते थे, आईबीए, आईओबीएम, आईवीएस, ज़ेबिस, Hmm. इकरा, इस तरीके की नॉन यूनिवर्सिटीज़ थी, ठीक है? हबीब आई, ठीक है? हबीब की जेंट्री, हबीब में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हबीब के जो ग्रेजुएट हुए और हबीब ने जो अपनी पूरी प्रोफाइल बनाई है, इट्स अ एलीट यूनिवर्सिटी। Yes. ऑल्दो कि इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, हबीब यूनिवर्सिटी जहाँ पर है, वो वहाँ पर क्यों है, किसी और जगह होनी चाहिए थी, ठीक है? बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये तो प्लस पॉइंट हबीब की तरफ से आया था कि जगह से मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितना अच्छा स्टूडेंट ग्रेजुएट कर रहे हो, कितना कितना अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ कराची के अंदर अभी अगर कम्युनिकेशन डिज़ाइन की बात करें तो अगर आईवीएस है तो उसके बाद दूसरा जो है वो हबीबी होगा या उसके बाद फिर दूसरी Hmm. यूनिवर्सिटीज़ देखी जाती होंगी। इट्स गुड कि ये यूनिवर्सिटी ने अपनी मार्केटिंग में भी और बच्चों को भी ये चीज़ सिखाई है। एंड Yes. व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो कि आईवीएस में फॉलो होता है, जो कि हबीब में फॉलो होता है, जिसमें आपको कुछ मेजर कोर्सेज़ करने होते हैं और कुछ माइनर कोर्सेज़ करने होते हैं बिफोर, क्योंकि उसके अलावा जो मैं यूनिवर्सिटीज़ में देखता हूँ, इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, बट ऑब्वियसली अगर मैं पर 14-15 साल पढ़ के यूनिवर्सिटी में आया हूँ या 12-13 साल पढ़ के यूनिवर्सिटी में आया हूँ।
मुझे नहीं इस्लामियात पढ़नी, मुझे नहीं फिज़िक्स पढ़नी, मुझे नहीं मैथ्स पढ़नी, तभी मुझे इस स्पेसिफ़िक फ़ील्ड के अंदर ग्रेजुएशन करनी है। तो देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग दैट। 43 कोर्सेज़ में अगर आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड कोर्सेज़ हो तो वो तो है। तो येस यू आर राइट कि हबीब हैड डन समथिंग गुड इन दिस फील्ड। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग कि उसका जो इतना रिगरस करिकुलम होता है और द एम्फेसिस ऑन द कि एक्चुअली हबीब में आई थिंक हर जगह ही ऐसा होता है। इवन आई हैव फ्रेंड्स इन आईपीए एंड इवन इन आईवीएस, वो जो कॉम्पिटिटिव कल्चर होता है ना, इट एक्चुअली पुशेस यू to do your best. So when I graduated from Habib and joined Dollins, actually because Habib में हम दोस्तों में बात करते हैं कि it's a bubble. जब आप वहाँ से निकल कर एक्चुअली कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं तो इट्स वेरी डिफरेंट और वहाँ की डायनामिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं। इज़ इट मतलब इज़ इट अ बबल लाइक यू नो No, I don't think so. you know from Naveed? No, I don't think so. I think Habib tells you those principles. I think जो एसक्यू वाली चीज़ होती है ना हबीब में वो बहुत ज़्यादा um, पाई जाती है, नॉट इन जस्ट इन इट्स करिकुलम बट उसकी जो वैल्यूज़ है, जो योसिन की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पर भी आई आई पर्सनली हैव फेल्ट दैट कि उसका जो पूरा कोर्स वर्क है, उसका जो मिशन है, वैल्यूज़ आप वो पढ़ेंगे तो इट काइंड ऑफ ट्रेन्स द स्टूडेंट टू बी एम्पैथेटिक विद ईच अदर, टू बी वेरी ओपन टू criticism, उसको लो, उसको समझो। तो when I came into Dollins, alhamdulillah, I think I'm privileged again. I got into a team which was very open to these things. मेरी जो personally the team I am working with is open to ideas and is open to um maybe the unlearning phase. So it was easier for me to kind of gel into with that. However, I have seen my friends who are struggling in the industry not because they are from Habib or not because um they don't do what the JD requires them to do. It's just because एक ये भी मेंटालिटी है यहाँ पे कि आप हबीब से आए तो आप बहुत ही बर्गर होंगे और ये होंगे, बट दे डोंट actually recognize the fact that 85% of the student body is actually on a scholarship or financial aid. So आप वो वाला जो पूरा डायनामिक है वो ज़्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आता। तो पर्सनली आई थिंक हबीब से आप जब पढ़ के निकलते हैं, सही आपके पास एक यूनिवर्सिटी का टाइटल तो है, बट स्किल सेट इज़ समथिंग व्हिच यू नीड टू डेवलप बाय योरसेल्फ। और स्किल सेट्स आई बाय स्किल सेट में ये नहीं कह रही कि सिर्फ हार्डकोर स्किल सेट्स कि आपने फिग्मा सीख लिया, आपने जितना भी एडोबी है वो सीख लिया, बट हाउ टू ब्रांड योरसेल्फ, हाउ टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़, ये सेल्फ लर्न भी होता है। ऑफ कोर्स इट्स पुश्ड एंड पॉलिश्ड बाय द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, बट ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद सीखनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू फिट इनटू कराची का जो इतना सैचुरेटेड जॉब मार्केट है उसके अंदर। तो ये डिबेटेबल टॉपिक अबाउट द सैचुरेशन थिंग। इससे एक और चीज़ निकलती है, वो मैं फिर इससे कनेक्ट करना चाहूँगा। ऑफ कोर्स। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, what I see, there are two type of students. Number one, who really wanted to understand the real dynamics के real world काम कैसे करती है, ठीक है? The point where you say that it's a bubble, yes, it is. Because in universities, you are competing with 30 students जो कि आपके दोस्त होते हैं, and it's just a matter of 100 marks, ठीक है? आउटसाइड वर्ल्ड कॉर्पोरेट की बात अगर मैं करूँ तो वहाँ पे किसी कंपनी का लाखों करोड़ों रुपए लगा हुआ होता है, एंड दे आर पेइंग यू, यू आर नॉट पेइंग देम इन यूनिवर्सिटीज, यू आर पेइंग द यूनिवर्सिटीज टू टीच यू इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड यू आर गेटिंग पेड टू डू व्हाट यू आर डूइंग, सो यू आर अकाउंटेबल ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो पॉइंट आता है जहाँ पे आपने भी कहा था ना कि मे बी यूनिवर्सिटी विल गिव यू अ लेवरेज कि ठीक है, इट्स ये आईवीएस का स्टूडेंट है या हबीब का स्टूडेंट है, और कराची में ये होता है, इसमें इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लॉट ऑफ टाइम्स यू गेट अ प्रिविलेज कि अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, अच्छा अगर आपने लम्ब से पढ़ा है तो ठीक है यार, आप आईपीएस से बेहतर हो, अगर आपने आईबीएस से पढ़ा है तो आप शायद इकरा से बेहतर हो, वाइस वर्सा, ठीक है? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर स्टूडेंट को अपनी पर्सनल ग्रोथ पे भी मेहनत करनी होती है। ऑफ कोर्स। In our field, what I see is people think getting 4.0 GPA, इट्स गुड कि हाँ ठीक है यार, आपको अपनी स्कॉलरशिप मेंटेन रखनी है, पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ें और उस अच्छी यूनिवर्सिटी के प्लस पॉइंट्स में एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको अच्छे ग्रेड्स लाने ताकि आपकी स्कॉलरशिप मेंटेन रहे, तो आप पढ़ें, ठीक है? बट एट द एंड ऑफ द डे, यू डोंट लाइक कि आप सिर्फ पढ़ते रहें और आपको कंपनी या आपको मार्केट का ना पता हो, ठीक है?
अगर मैं आपकी बात करूँ, यू आर प्रिविलेज्ड इनफ कि आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल से ही जॉब मिल गई, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर अ लॉट ऑफ हबीब यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट होंगे, उनको सबको तो नहीं मिलती होगी जॉब, और अगर मिलती भी होगी तो किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, एंड देन यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग दैट फेज़। Here is the main point is working on your personal profile, ठीक है? People, student usually don't have good portfolios. They don't have good LinkedIn profiles. They don't know how to showcase. So ये डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है कि हाँ, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ को देख के अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि यार वो स्टूडेंट ऐसा जी, होगा। 80-90% शायद वो सही भी हो, ठीक है? लेकिन हर स्टूडेंट पे अप्लाई नहीं होता। जैसा आपने कहा कि वो स्कॉलरशिप पे अगर पढ़ रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगर वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो अगर स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है, तो हर कोई बर्गर नहीं होता। ऑफ कोर्स। हाउ मच यूनिवर्सिटी टीच यू in getting your profile right, ठीक है? What I see, a lot of people don't know how to market themselves. They don't know how to connect with people. They don't know what's the real meaning of connection building. अब तो कराची में फिर भी इन 2025, 2-3 साल पहले अगर मैं बात करूँ, कैटलिस्ट लैब हो गया, फिग्मा हो गया, इन ये लोग तो अभी भी अब इवेंट जाके होने लग गए हैं, तो आप लोगों को पता चलता है कि यार ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? बिफोर दैट ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है? हमें नहीं पता था ये कनेक्शन बिल्डिंग कैसे करनी है, अब तो बहुत सारी स्कोप होती है, अब आप यूनिवर्सिटी से साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्रॉस यूनिवर्सिटीज़ कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, या आप किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ पर आप लोगों से मिल सकते हैं। व्हाट आर द मेन की फैक्टर्स एज़ यू सी कि क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप गैदरिंग में सीखते हैं, ठीक है? और जब आप कोरोना के फ़ेज़ में पढ़ते हैं, तो आपने जो सबसे बेस्ट फ्रेंड बनाया था, वो अपने लैपटॉप को बनाया था, क्योंकि आप 24 आवर्स में से ऑलमोस्ट 24 आवर्स या 23-22 आवर्स उस पे लगे रहते थे, ठीक है? ईदर इट्स वर्किंग, ईदर इट्स एंटरटेनमेंट और एनी अदर थिंग, ठीक है? तो वो ह्यूमन इंटरेक्शन तो इतना हुआ नहीं। फिर 2022 में जब ये कोरोना खत्म हुआ, आप मार्केट के अंदर गए, तो आपको पता चला ओके फाइन यार, ये तो अब तो मुझे लोगों को अब मुझे क्योंकि लोगों को नहीं पता ना कि अलिज़ना नाम की एक लड़की है, कराची के किसी घर में रहती है, कि उनको जॉब देनी चाहिए, ठीक है? और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी हो कि वो अपने जॉब पोर्टल पे अप्लाई करे और उसका जॉब पोर्टल से जॉब लग जाए। व्हाट आर द की पॉइंटर्स दैट यू सी मिस्टेक्स के बच्चे कर रहे हैं? ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए ताकि आप जॉब या जो भी आप काम करो उसके अंदर एक्सेल कर सको। आई थिंक फॉर आवर फील्ड मुझे तो ऐसा लगता है एंड व्हिच आई थिंक आई आल्सो डिड अ मिस्टेक एंड आई रेक्टिफाइड इन माय लास्ट सेमेस्टर वाज़ कि हम सोचते हैं यानी एटलीस्ट मैंने ये सोचा था इवन आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हू हैड दिस सिमिलर माइंडसेट ये ग्रेजुएट होंगे फिर पोर्टफोलियो बनाएँगे पूरा एक साथ बैठ के एंड देन वी विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स एंड वी विल सी हाउ एंड वेयर वी लैंड अप। तो एक तो ये जो पोर्टफोलियो वाली चीज़ है ना इट्स बेसिकली योर फेस। यू कैन नॉट गो एवरीवेयर एंड टेल अबाउट योरसेल्फ। सो इवन फॉर अस जो हमने कोरोना में पढ़ा था तो हमारे पास तो ह्यूमन इंटरैक्शन कहीं था ही नहीं। इवन व्हेन यू से 2022 एंड 2023 वी डिडंट हैव दैट एक्सपोज़र कि हम एक्चुअली जाकर इतना इंटरैक्शन करें, नेटवर्क करें। जो होता था यूनिवर्सिटी के प्रेमिस में करियर फेयर्स में हो जाता था या उस वक़्त होता था। तो आई फ़ील लाइक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमें एज़ अ डिज़ाइनर्स करनी चाहिए इट्स टू इन्वेस्ट इन योर पोर्टफोलियो, टू वर्क ऑन इट। मेबी आप लोग यानी इवन आई स्टिल डू दिस, इवन आई हैव अ जॉब जो आपके पास ऐसे ही प्रॉम्प्ट्स आ रहे होते हैं फॉर यूएक्स, यूआई डिज़ाइन, आई स्टिल वर्क ऑन इट। मैं डिज़ाइन करती रहती हूँ चीज़ें। Recently, I was not liking the interface of Al Habib जो का application होती है mobile पे. I just designed one of the interfaces because it keeps you going. It keeps your ideas fresh. It keeps your whatever you have learned फ्रेश रहता है वो सब चीज़ें। सेकंड चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है इट्स कि आपकी रीस यू नीड टू डू वेल रिसर्च बिफोर स्टेपिंग इनटू द मार्केट बिकॉज़ बहुत से लोग हैं इवन आई नो फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हू जस्ट लैंडेड इन अ जॉब because of a good salary package. Even it's not serving the purpose it should be serving to them. तो एक तो ये चीज़ है कि वेल रिसर्च्ड आप मार्केट में जा रहे हैं। तीसरा आई थिंक लाइक हम सीवी को बहुत ही लाइटली लेते हैं और हम समझते हैं कि बस हम डाल दें उसको भर दें 3-4 पेजेस का बना दें, उसमें सब डाल दें, सारी चीज़ें डाल दें। इट डज़न्ट रियली वर्क आउट। सो यू एक तो पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना है। सेकंड आई पर्सनली थिंक कि योर सीवी एंड योर पोर्टफोलियो शुड बी योर फेस। अगर वो किसी के पास जा रही है तो इट शुड बी वेल डिज़ाइन्ड इनफ कि वो
कंटेंट वाइज के वो आपको स्टैंड आउट करा। एंड थर्ड ऑफ कोर्स यू नीड टू नेटवर्क विद पीपल। आप जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे यू मेंशन कि अब काफ़ी डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती है विच एक्चुअली इनवाइट यंग जनरेशन के वो आए, स्टेप इन करे, आइडियाज़ पिच करे। इवन एट हबीब वी हैव सच हैकाथॉन्स, वी हैव इस तरीके की चीज़ें जो 2 टू 3 डेज़ होती है जिसमें नॉट जस्ट आई थिंक हबीब के आउटसाइड स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आई फील लाइक ये 8वें या 7वें सेमेस्टर की कहानी नहीं होती, इट स्टार्ट्स वे बैक। अब जैसे नाउ-अ-डेज़ आई फ़ील लाइक बच्चे पहले से इंटर्नशिप स्पेसिफिक टू देयर फ़ील्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे टाइम पे होता था, इवन इफ यू सी मैंने विजुअल में भी किया हुआ है, मैंने एडवोकेसी में भी इंटर्नशिप की हुई है, सो वो ट्राजेक्टरी इतनी आसानी से हमारे टाइम पे हमें नहीं पता चलती थी, ना कोई गाइड करने वाला होता था। लाइक इन माय फैमिली मेरी 2 बहनें नर्सेस थी, तो व्हाटएवर गाइडेंस आई टूक वाज़ फ्रॉम माय प्रोफेसर्स और माय फ्रेंड्स और माय सीनियर्स। सो वो एक गाइडेंस वाली भी चीज़ थी कि नहीं मिलती थी, कहाँ जाएँ, किससे पूछें, नई फील्ड है और पता नहीं कोई गाइड कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा, इतने कनेक्शंस भी नहीं है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर आई थिंक योर सेकंड सेमेस्टर और योर थर्ड सेमेस्टर। यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग टू लाइक माइंडेड पीपल। आप उनसे बात करें, समझें, इसका प्रॉस्पेक्ट क्या है। आई थिंक ये चीज़ें ना बहुत क्लिशे लगती है जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ में होते हैं, यार देखा जाएगा जब 8वें सेमेस्टर में पहुँचेंगे, देख लेंगे क्या करना है। बट अब जिस तरीके की मार्केट हो रही है ना, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव एंड इट रिक्वायर्स अ गुड स्किल सेट जो आपको स्टैंड आउट करे। सो इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, आई पर्सनली थिंक। Totally agree with the points you have shared क्योंकि um, it's not about just getting a job, it's not about just getting graduation. Yes. In a student, what I see is they don't, it's more likely a debate of motivation and discipline. I personally believe that you can be motivated once a week or maybe once a year or maybe once in 6 months. But motivation से आपकी life नहीं चलती. You need to be disciplined for that. First of all, Yes. if you think कि आपके अगर portfolio पे सिर्फ thesis है और आप उससे job secure कर लेंगे, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए उसकी job secure करने के बाद you are not going to be securing a job of a senior designer or team lead or something like that. You need to work on it. You need to work hard for that to get that opportunity. सेकंड थिंग जो कि बड़ा इश्यू रहता है लोगों का, इट्स अबाउट दे डोंट रीच आउट टू पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द मार्केट इज ऑल अबाउट. For sure. Learning and development is one of the core thing that is going to be very much important when we talk about growth of a person. Of course. Till the date, it's been more than like 7 plus years in the industry. I still do online courses. I still do research. क्योंकि things are going as fast कि आपको नहीं पता कि आप सुबह उठेंगे और क्या चीज़ नहीं आ जाएगी. Yes. What I see in students, a lot of students have that कि यार देख लेंगे, कर लेंगे. This Hmm. this attitude won't help. ठीक है. उसके बाद एक और जो बड़ा मसला मैं देख रहा होता हूँ, nowadays हो सकता है I शायद think ये डिबेटेबल हो, लेकिन nowadays people don't have mentors. अ, yes, very true. और दूसरी चीज़ ये है, उनको ऐसा लगता है कि मेंटोर्स और चैलेंजेस दोनों बराबर है. मतलब Hmm. एक आपका दोस्त अगर आपसे बहुत अच्छा कर रहा है तो आपका चैलेंज है, आप उसको देख के सीख सकते हैं क्योंकि अगर वो सेम एज में आपसे बेहतर कर रहा है तो इट्स योर चैलेंज. बट मेंटोर आपकी एज का नहीं हो सकता. मेंटोर शुड बी समवन जो कि Of रेलेवेंट फील्ड course. हो. जैसा अभी आपने बोला कि यार बहुत कम ऐसा होता है कि, और बहुत मुश्किल भी होता है कि अगर आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हर बंदा अलग इंडस्ट्री से रिलेट करता है, Hmm. ठीक है? तो वो आपको किसी भी तरीके से गाइड नहीं कर सकता. और ये बात नहीं है कि यार आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और अपनी अम्मा की बात सुन के आप कोई चीज़ कर लें, वो अपनी जगह ठीक बोल रही है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ना, उनका एक्सपीरियंस उस फील्ड में नहीं है, तो उनकी बात मतलब कोई मायने नहीं रखती. तो यू शुड हैव राइट मेंटोर्स, ठीक है? दूसरा एक और होता है कि येस, इट इज़ अबाउट यूनिवर्सिटीज़, बट a teacher is same for all 40 students. So if you're investing your time going back to teachers and start exploring different things from them, then they might help you. उनको नहीं पता चलेगा कि भाई आपको क्या चीज़ समझ में आ रही, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही.
So this is very important in that phase. Uh, the next thing that I have in my mind is कि एआई आ गया है और अब जॉब चली जाएगी. How you what's your opinion on that point? Do you think AI is something that is going to cut off jobs? Okay, so basically, what I think about AI and जो भी काफ़ी चीज़ें भी चल रही है कि इट विल मेक यू लूज़ योर पोज़ीशन या डिज़ाइनर्स या आर्टिस्ट की पोज़ीशंस वो ले लेगा। ऑफ़ कोर्स देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो हो रही हैं व्हिच आर काइंड ऑफ टेकिंग एक स्टेप अप ऑन हाउ थिंग्स आर वर्किंग फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी बहुत बीच में चला था एक ट्रेंड के यू प्रॉम्प्ट अ पिक्चर इनटू चैट जीपीटी एंड इट गिव्स यू काइंड ऑफ एआई वर्जन ऑफ इट जो पिक्सर में होता है या किसी और फॉर्म में होता है तो देयर वर आर्टिस्ट हु आर सेइंग कि यार ये यानी देयर वाज दिस डिबेट अबाउट कि ये तो जॉब्स ले लेगा मगर एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले हम models banate the and then we start working on it but now we have those models we just need to be collaborative with those models because at the end we the human has creator set so rather than being commanding we need to be collaborative अब जब आप collaborative हो गए AI के साथ it will be generative so I personally think कि AI को आप जब ऐसे अपना co-pilot लेके चलोगे so you will have that a edge on in the industry because you as a human will have your critical thinking wali game very strong because that's I think AI cannot do. As of now, maybe in future it will be, but you need to be the pilot and AI needs to be the co-pilot. So as much as you know, you need to understand कि AI को भी इतना पता है. But the critical thinking वाली जो चीज़ है, we need to kind of maybe स्टेप इन उस चीज़ में या उसको बनाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एज़ अ डिज़ाइनर अगर मैं अपने आप को देखूँ सो आई केम अक्रॉस दिस आर्टिकल जिसमें दे काइंड ऑफ elaborated on how we are asked to be fixated on कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ बना के दे दें, ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिव लेआउट बना के दे दें और फिग्मा ऑन एडोबी स्वीट चीज़ किसी भी चीज़ पे। बट वी एक्चुअली काइंड ऑफ लूज़ व्हाट एक्चुअली डिज़ाइनर इवन मीन इन दिस एंटायर सिनेरियो। सो इस चीज़ में एक्चुअली एआई इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड एट दिस। मेबी इन फ्यूचर वो इस तरीके के प्लगइन्स बना दें या वो रिएक्ट कंपोनेंट बना दें जिसकी वजह से वो इतना एक्सेसिबल हो कि फिग्मा की नीड ही चली जाए। बट आई पर्सनली थिंक कि इट कैन नॉट टेक दैट एम्पैथी वाली चीज़ और इट कैन नॉट टेक दैट ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ अवे फ्रॉम अस। So maybe we have the model, now we have to build upon that. So I personally think it's not going to take away the jobs and going to make it easy if we use it as a collaborative tool and not as a commanding tool. So yeah. I agree with your point. Lastly, I just wanted to discuss is with regards to your experience, with regards to your education, what are the two or three tips that you wanted to give to the people who are graduating in 2025? What are the main key things that you think यार इन चीज़ों पे फोकस करें ताकि उनको ज़्यादा फ़ायदा हो? आई थिंक एक चीज़ जो मुझे पर्सनली फ़ील हुई इवन आफ्टर ग्रेजुएशन इज़ टू गेट योर स्किल सेट वेरी competitive. अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को सीख रहे हैं, बी इट सोशल साइंसेज़, बी इट इंजीनियरिंग, टेक योर यूनिवर्सिटी वेरी सीरियसली, टेक योर कोर्सेज़ वेरी सीरियसली। आई थिंक वो जो एक तरीके से होता है ना कि यू हैव अपॉर्च्युनिटीज़ बट यू व्हेन यू डोंट हैव दैट राइट स्किल सेट, you are not really well suitable for that position even if your university's name takes you to that position वो फिर आपको इश्यूज आते हैं उस चीज़ में दूसरी चीज़ जो मैंने पर्सनली सीखी है it's those who really want to go into research वाली field because my role also requires me to do research. I feel like we need to start seeing research from a very different lens from the university only and I really want कि universities भी इस तरीके के perspectives दे कि we should do research in any form फिर वो market research हो consumer research हो किसी भी तरीके की research हो not as a tool of power or supremacy but actually as a tool for care or solidarity because we are actually working with the audience and not
it's something which is just benefiting the business. So ये research वाली चीज़ जो है, those who are, because many of the people even our field are towards the research वाली side. So ये एक चीज़ है कि students should start learning this from their early years in the university and start seeing research from a very different lens. दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, which I personally think is तीसरी चीज़ actually which I personally think is कि there is a big scope for um I think digital transformation और इस सब चीज़ों में जो कि अभी इतना टैप इन नहीं है, और अगर टैप इन भी है, so we are not seeing it from the lens it should be seen through. So for example, अब जब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, many organizations focuses on कि हम बहुत सारे टूल्स ले लेते हैं, इट विल हेल्प अस गेट थिंग्स डन, या हम ऑटोमेशन कर लेते हैं हर चीज़ की, उससे सब चीज़ें हो जाएँगी, या हम बस डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। बट वी डोंट रियली फोकस, लाइक इन कराची आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, कि हम वो कनेक्ट एक्सपीरियंसेस को नहीं कनेक्ट कर पाते, हम उस इमोशन को नहीं कनेक्ट कर पाते लोगों के। सो आई थिंक for university students, first is to really get the skill sets very competitive, very top notch. Dusri cheez, which I already mentioned, and third is to explore even after your education, like you mentioned. Even agar मैं अभी अपनी screen share करूँ, there are multiple courses जो अभी मेरे खुले हुए हैं, which I'm planning to do and which already I'm doing, because इट्स दैट थिंग कि वो आपकी मेमोरी बिल्ड करता रहता है। इट्स नॉट जस्ट समथिंग कि आपको जो फीड करा दिया गया है, आप बस उसी को लेते हुए चलें। इट्स बेसिकली मेमोरी इन मोशन व्हिच वी नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड व्हिच वी नीड टू काइंड ऑफ पुट फॉरवर्ड टू द स्टूडेंट्स एज़ वेल। I think all these 3 pointers are very good. That's gonna help a lot of people understanding the overall dynamics of the specific field. So thank you so much for your time. I'm pretty much sure we have discussed very good pointers. People will learn from it, and if they have any doubt, they can reach out to you. I'm pretty much sure you would be available for them to guide them. So it's my pleasure to have you in the session, and I'm pretty much sure people will learn from it. Thank you, Olsta.